सीए राजेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ हैं। सर मोस्ट वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मैडम। राकेश सर मोस्ट वेलकम। आर.के. झा सर मोस्ट वेलकम। गुरु राखा सर मोस्ट वेलकम। राकेश बत्रा सर मोस्ट वेलकम। मैडम मैं आशीष आज सर बताना मोस्ट वेलकम। चाहूँगा सभी दोस्तों को कि जो आज ऑफिस कर्टसी है वो हमारे गुरु राखा मामा जी की तरफ से है। आज उनके ऑफिस में बैठकर हम यहाँ पर आपके साथ रूबरू हैं, तो मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीछे से उनकी आवाज भी आ रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। प्लीज मैडम कैरी ऑन, वी हैव गॉट सम क्वेश्चंस। यस सर मोस्ट वेलकम। अनिल सर मोस्ट वेलकम। मेहंदी रत्न साहब, मुटनेजा जी, हमारे मित्र यशपाल जी, राकेश बत्रा साहब, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया। Most चलिए मैम, welcome. सवालों का सिलसिला चालू करें। जी सर। Some material sent to job worker and some material has burnt, lost, scrapped during job work process. Would we have reversed the ITC of it? देखिए जहाँ साहब, ऐसा है कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तब तक अलाउ होता है अगर वो मटेरियल लॉस, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स ना हो। तो अब इस समस्या में यहाँ पर स्थिति क्या है? So the question there of reversal of input tax credit, let me tell you Jha sahab, in case of normal loss in the process of execution of job work, if the material is lost during the normal execution of the normal process of converting raw material to job work, then my dear friend, the input tax credit shall not be reversed. But if it is an abnormal loss, then certainly you would require to reverse the input tax credit. जी भारती मैम, next question. If same is happening with principal in his factory during manufacturing. मैंने आपको जवाब बड़ा एग्जॉस्टिव दे दिया झा साहब, एंड आई होप आपको पूरी ओवरऑल बात समझ आ गई होगी। So what is your opinion on water, electricity, DG set, etc. provided to tenants in a commercial business complex? Should it be treated as composite supply? This is a very interesting situation. It, to my view, it cannot be considered to be composite supply, because the supply of DG set and then water and electricity and running of DG set, it means uninterrupted power supply given by the landlord to the tenant. It is an independent supply which is not ancillary to the main supply. So if it is under the contract in the rent agreement itself, then you may treat it as a composite supply, else not. So my client GST was cancelled on March 2019 due to non-filing of GST. Now we paid all fine and update returns and go for revocation, but
Same was not allowed to us because it's more than 90 days. फाइल Please अपील suggest. मिस्टर झा, फाइल अपील जी फॉर सर. दिस, यस सजेस्ट वे ऑफ अपील फॉर दिस. आपको अपील ही फाइल करनी पड़ेगी. सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, आप अपील फाइल करें, अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी. मोस्ट वेलकम कंचन जी. नमस्कार संजीव अरोड़ा जी, हमारे मित्र अंबाला से. प्रदीप सर मोस्ट वेलकम. So what will happen if from HSN code goes wrong in delivery challan? देखिए सर, अगर आप इम्प्रॉपर डिटेल देते हैं डिलीवरी चलान में या इनवॉइस में, देन यहां पर 10,000 रुपीज और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर की पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 प्रिस्क्राइब्ड है. ऑल्दो दैट इज डिफिकल्ट टू बी लेविड बिकॉज फॉर दैट शो कॉज इज टू बी इशूड. अगर ऑडिट होता है आपका डिपार्टमेंट में का सेक्शन 65 का, और उस दौरान ये बात जो है वो सरफेस पे आती है, then they would certainly issue a show cause for this and certainly try to impose the penalty, although that is very much debatable. अलंकार जी, आपने मुझसे पर्सनल भी सवाल पूछा था, but I could not reply you at that point of time. तो अच्छी बात है आपने यहाँ सवाल पूछा, so that आपके माध्यम से और भी हमारे मित्रों को ये बात पता लगी. धन्यवाद. PKA advisory. Good evening. गुड इवनिंग. नमस्कार. So does LUT filed during the year have retrospective effect? If not, filed by 31st March. देखिए नीलू जी, अगर आपने फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एलयूटी फाइल नहीं किया और उसको लेटर ऑन फाइल किया, सो टेक्निकली द स्टेटस ऑफ जीरो रेट ऑफ द गुड्स सप्लाइड आउटसाइड इंडिया which is called export may be withdrawn and may be taxed, but the department has always taken a lenient view with respect to letter of undertaking. So even if you filed LUT post ipso facto, then also no adverse action would be taken against you at present, but yes, it is a non-compliance. So my question is related to delivery challan. How to value delivery challan if we transfer goods from one warehouse to another warehouse? Do we have to charge GST? आशीष भाई वेलकम. देखिए आशीष भाई, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप पहला सिनेरियो विद इन स्टेट एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं. इफ यू आर ट्रांसफरिंग विद इन स्टेट फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर, देन ऑन डिलीवरी चलान द वैल्यू ऑफ गुड्स shall be at which you have purchased it. Even if you do not write value on delivery challan, then also it is acceptable, although you would require to attach value or determine value for the purpose of generating e-way bill. So the cost would be the value at whatever cost within state, and no GST from within one state, no GST shall be charged on that delivery challan. It is not a supply because it is within the GST IN. But second scenario, if you have two warehouses in two different states, then if you are transferring material from one warehouse to another, then certainly it is a deemed supply, schedule 1, and would be taxable, and the rate of value of supply would be if
Rule 28, second proviso. First proviso says there are two provisos in Rule 28 talking about the supply made between distinct person, and this is a preposition of distinct person. There are two provisos. First proviso says that at the 90% of the value at which the recipient is going to sell the goods. For example, I am sitting in Delhi, Mutneja ji sitting in Noida. Both are having the same organization but two different GSTIN. Ashish bhai called me, said, Rajender ji, I want such and such goods, would be selling to such and such person at 100 rupees and would be selling the goods as such. Whatever you would be sending, I would be selling. So in that case, first proviso says 90% of 100 rupees at which Ashish bhai would be selling the goods to the third party, unrelated party. So value can be that. Second proviso says if Ashish Mutneja ji sitting at Noida, my separate GSTIN distinct person as per section 25 subsection 4. In that case, if Ashish bhai is going to receive the full input tax credit of the tax charged by me, then value can be anything. So I have covered all the scenarios which could have been possible anywhere on this earth with respect to GST. Lease money. Lease money received on agricultural land is taxable or not? Kanchan ji, agricultural land per se, if any activity with respect to the land, then we do not differentiate between agricultural land or non-agricultural land. In relation to land, if any service is provided, that is taxable unless exempt. So if you have given agricultural land for agricultural purposes, for cultivation also, then there is an exemption, but otherwise the lease money received shall be chargeable to tax. Renu ma'am, most welcome. Sir, I have rented an immovable property for which I raise invoice on first for every month. Now, due to lockdown, the tenant sometimes doesn't pay rent in full or partially. Do I have to pay GST on it? When last year lockdown happened, there was a judgment passed by Delhi High Court, Honorable Delhi High Court, which was talking about that under the obligation of the rent agreement, whether the tenant is compulsorily obliged to pay rent even if there is no usage of the property. So unless the Honorable High Court said, unless there is a clause in the agreement that force majeure, the acts done by the nature, God, acts of God, in the case of acts of gods or by the nature, whatever would be, whatever is provided in the rent agreement, that shall prevail. If provided that in the event of act of God, my rent shall continue, then the rent is, the tenant is obligated to pay, else not. So far as GST is concerned, it is a continuous supply of service, and in agreement it is written that the rent shall due on every first of the month. Large, by and largely rent gets due on the first of the month in advance. So the moment the provision of service as per the agreement is deemed to have been provided,
Hi, please give 5 minutes. I guess there is some network issue. Sir, are we required to generate e-way bill if we transfer our goods by a private vehicle through delivery challan? मुटनेजा साहब, ई वे बिल आप अपनी गाड़ी से गुड्स की मूवमेंट करो या किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करो, ई वे बिल इज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर, and you have to generate it sir. That goes without saying sir. No question arises. Sir, due to specification mismatch of tablets, pharma products, we destroy the same in our ETP without reversal of taxes. Is this correct procedure? If you actually destroy products, you have to reverse the input tax credit. Alankar ji. Hemant sir, most welcome. Sir, if exporter not filed its ITC4 for 1920 or 2021, can we now file it any late fee? If they not file ITC4, will it impact it ITC credit as he will apply for the refund of accumulated ITC? हेमंत भाई, जवाब दे चुका हूं, इसका रिपीट करने का कोई फायदा तो है नहीं, मैं जवाब वही दूंगा, कुछ और सवाल पूछ लो, समय मिला है तो। ये जवाब दे चुका हूं आपको मैं, ITC 4 और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी का कोई लिंकिंग नहीं होता है सर, और ITC 4 आप अभी भी जमा करा सकते हो विद लेट फी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। So whether ITC available on lift installation? मैडम, जितना छोटा आपका सवाल है मेरा उतना ही उससे भी छोटा जवाब है ना। आगे लीजिए मैम। ITC on lift for promoter whether allowable? ITC on lift for promoter, नो। जब मैं कह रहा हूं कि बिजनेस में आपने फैक्ट्री प्रीमिसेस में लगा दिया लिफ्ट ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर तब भी अलाउड नहीं है, तो फिर प्रमोटर के घर पे लगा दी लिफ्ट तो कैसे अलाउड होगी लखोटिया साहब? How report delivery challan in GSTR 1? सीरीज रिपोर्ट करनी है, जब सप्लाई नहीं है तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना। आशीष भाई, आप जो सीरीज बनाते हैं उस सीरीज को GSTR 1 में रिपोर्ट करना है कि भैया ये फलानी सीरीज मैंने बना रखी है,
इनवॉइस सीरीज, डिलीवरी चलान सीरीज, रिसीट वाउचर सीरीज, रिफंड वाउचर सीरीज, डेबिट नोट सीरीज, क्रेडिट नोट सीरीज, वो सिर्फ सीरीज ही बतानी है सर, और कुछ नहीं करना। As per Section 17, goods lost, destroyed, stolen, ITC is blocked. So if my goods are destroyed by fire, will I get ITC? No, you have to reverse the ITC. Madan sir, most welcome. Welcome, Sangyam bhai. Sir, please enlighten me about GST implication or corporate guarantee. Will deeming fiction will be attracted in this case to arrive at the consideration? Your views, please. PK Advisory ji, there is a circular issued by the department with respect to corporate guarantee given in the government sector. They have made it taxable, sir. So far as my view is concerned, it would be taxable. And yes, you are right, deeming fiction shall be applied. सवाल पता नहीं क्या है, आप आगे बढ़िए। अलंकार सेठ जी का सवाल लीजिए। आशीष भाई पूरा सवाल लिख के भेज दीजिए जरा। Sir, order passed only by Department of Refund. How will it be retreated in business? क्या क्वेश्चन है ये? Order passed only by Department of Refund. How will it be treated in business? I could not understand the question. मनमोहन मोदी जी का क्वेश्चन लीजिए। वाह मोदी जी वाह, वेलकम। Sir, if any person does not book expenses in 2021 and book expenses in 21-22, whether ITC on those which are not availed in 2021 can be availed in 21-22 3B as per Section 16, audit of 2021 completed. 20-21 के खर्चे हैं नहीं लिए, 21-22 में ITC आप अवेल कर रहे हैं, उसके ऊपर 16/4 तो लगेगा ही, सितंबर तक लेने हैं आपने। पहली बात तो यही है। दूसरी बात समस्या ये है मोदी जी कि 20-21 का प्रॉफिट लॉस जो आपका है वो इम्पेयर्ड है, खर्चे बुक नहीं है वहां पे, वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। बट सोफर एज 16/4 का प्रॉब्लम है। अगर 21-22 में सितंबर 22 से पहले आपने क्रेडिट ले लिए 20-21 के, तो सर कोई आपको आपत्ति नहीं है सर, क्या प्रॉब्लम है, ले सकते हैं आप। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इम्पेयर्ड है सर। Sir, oxygen concentrators and oximeters purchased for staff and workers of factory for use in an emergency. Can we claim ITC on it? माय आंसर वुड बी, मैं इसको पहले भी कहता था कि कोविड प्रोटेक्शन आइटम्स, मैं पिछले साल भी बोलता रहा हूं हर जगह। सर प्लीज, पहले भी मैं आपसे कहता रहा कि आईटीसी कोविड प्रोटेक्शन आइटम्स पर मिलता है, मिलेगा। और मैं सरकार को आपके माध्यम से दोबारा बोलना चाहता हूं, मैं पहले भी ये आपको समझाता रहा और सरकार को बोलूंगा इस आपके माध्यम से कि एक सर्कुलर जारी करें। आप देखिए संदीप जी जो सवाल पूछ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितनी बड़ी जरूरत है आज की डेट में, हम सबको पता है। और अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को खरीद कर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहा हूं, तो मुझे इतना तो प्रमोट करो, इतना तो इंसेंटिवाइज करो कि मुझको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए आप खुद आकर कह दो। कोई टेंशन नहीं है संदीप गुप्ता जी, जितने मर्जी कॉन्सेंट्रेटर खरीदें, ऑक्सीमीटर खरीदें, हम आपको क्रेडिट देंगे। तो फिर देखिए मेरी दरिया दिली, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। अगर आज मैं ये डिपार्टमेंट खुद आकर एक सर्कुलर निकाल दे और कह दे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए कोविड टाइम में, और उसका जो आप इनवर्ट सप्लाईज खरीदेंगे उस पर आपको क्रेडिट देंगे, तो बताइए मुझे कम एज ए बिजनेस मेरी थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ना, कि भैया मैं सामान भी खरीद रहा हूँ, वो लोगों को दे भी रहा हूं एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका इनपुट भी नहीं मुझे मिलेगा। जब आपने खुद कह दिया
मई में कह दिया था पिछले साल इन कॉर्पोरेट लॉ ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ ने, कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, कि अगर आप कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, तो वो सीएसआर एक्सपेंडिचर्स में फॉल करेंगे। तो आप जीएसटी वाले भी तो आकर कह सकते हैं कि भैया सीएसआर एक्सपेंडिचर आप करेंगे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? और अगर वो नहीं कहते हैं तो मेरे हिसाब से तो मिलता है भाई, आप लीजिए। और इसका हिसाब, आप किसने सवाल पूछा था ये अभी? ये सवाल पूछा है संदीप गुप्ता जी ने। संदीप गुप्ता जी, आप, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हमारे वही संदीप गुप्ता जी हैं जो हमारे साथ अभी कोर्स भी ले रहे हैं जीएसटी का। तो मैंने आपको बताया भी था सर, किसी भी क्रेडिट को लेने के लिए दो बातों का पूरा होना जरूरी है। पहला, वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और दूसरा, वो ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं, और इस केस में दोनों हैं, कोई रोक ही नहीं सकता सर आपको क्रेडिट लेने से। आगे बढ़िए मैडम। Sir, in continuation to my query on corporate guarantee, what is your take in service tax regime? Many हाँ सर, मेरे litigations हिसाब से उस समय भी वहां पर प्रॉब्लम थी सर, प्रॉब्लम थी सर वहां पर भी। इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ Sir, in case of automobile industries, we need to deposit some fund in advance with the company for purchase of vehicles. If any fund remains in excess, we get interest on such amount. Should GST leviable on such interest being income for us and expense for the opposite party? टू माय व्यू, अगर वो आपको ब्याज देते हैं तो आप पे टीडीएस भी काटते हैं, नेहा रामपुरिया जी। और अगर वो टीडीएस काटते हैं तो 194A में टीडीएस काटेंगे आपका, वो तो क्लियरली वो इनकम है आपकी। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम है, और इंटरेस्ट इनकम है डिपॉजिट के ऊपर, जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट के रूप में मिला है, तो ये एग्जेम्प्ट है। नोटिफिकेशन 12/2017 CTR। Sir, if JCB machine is given on rent, e-way bill is required. If rent is 10,000 but value of machine is 50,000. E-way bill is required, sir. My view is. Sir, is ITC on cement and other material repair and maintenance of temporary structure, wooden partition, room partitions, etc. Temporary washroom setup which will be removed when client vacate the building. Sir, and there are so many, sir, moving to the continuation of the question, that and there are so many furniture fixture for temporary setup under rented premises which capitalized as furniture and fixture. Will ITC available read with section जो भी 17? कैपिटलाइज किया है फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसका आईटीसी ले लीजिए। लेकिन जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, सीमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी आपने और चीजें यूज की हैं, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी के रूप में आएगा। जब आप इस तरह के गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, रिपेयर ही क्यों ना हो, उसमें आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड वो खर्चा आप प्रॉफिट लॉस में डेबिट ना करें। अगर वो खर्चा प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर देते हैं तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर उसको कैपिटलाइज करते हैं तो फर्नीचर फिक्सचर का मिल जाएगा, बट अदरवाइज आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी का खर्चे का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। Sir, out of 14 lakh, 4 lakh received from department on pro forma invoice, but machinery not supplied till now due to unavailability. Government deducted GST TDS on 14 lakhs taxability. अब सर देखिए क्या है कि GSTR 7 फाइल कर दिया, 14 लाख पर TDS उन्होंने 2% दिखा दिया। आपके यहाँ TDS के रिटर्न में नजर आ रहा है। आपकी तो सिर्फ 4 लाख एडवांस मिले हैं, आपका तो सप्लाई नहीं हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं हुआ अभी, क्योंकि गुड्स हैं। गुड्स के केस में एडवांस जब आता है तो वो सेक्शन 12 में अट्रैक्ट ही नहीं होता, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता। जब टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता तो आपको इनवॉइस नहीं करना, तो टैक्सेबिलिटी तो नहीं है। लेकिन हाँ, चिट्ठी जरूर आएगी सर आपको, राहुल देव बर्मन जी, चिट्ठी जरूर आएगी। डिपार्टमेंट कहेगा भैया आपके GSTR 7 में ये आइटम खड़ा है 14 लाख रुपए का, और आपके रिटर्न में नजर नहीं आ रहा GSTR 1 में, तो एक्सप्लेन करो। तो आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। Sir, application for cancellation filed RAG 16. What is time limit for department for order of cancellation? RAG 19. So many cases more than 1 year we apply cancellation but not received
ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। कोई कैंसिलेशन बत्रा साहब टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारा सजेशन ये रहता है हमेशा कि कैंसिलेशन अप्लाई करके प्लीज परस्यू विद द डिपार्टमेंट एंड देन यू विल गेट द कैंसिलेशन, अदरवाइज कोई टाइम लिमिट नहीं है। Sir, in case of turnover more than 50 crores, whether e-invoicing in case of RCM invoice is applicable? नमस्कार प्रसाद साहब, हमारे सीनियर डी प्रसाद साहब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं अभी। प्रसाद साहब, आरसीएम के केस में 50 करोड़ से आपका टर्नओवर ऊपर है, इनवॉइसिंग लग गया, ठीक है जी। अब आरसीएम में इनवॉइसिंग कब होनी है? अगर मान लीजिए आप, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई देते हैं जिसके ऊपर टैक्स जो है वो आरसीएम में पे होना है, आपके एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, ई इनवॉइसिंग लगती है, तो उस आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइस पर जिसमें टैक्स आरसीएम में पे होना है पर भी ई इनवॉइसिंग लगेगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इनवर्ड सप्लाई, आप 50 करोड़ से ऊपर वाले हैं, ऑफ कोर्स हमारे डी प्रसाद साहब बड़े आदमी है, 50 करोड़ तो छोटी रकम है, 500 करोड़ के आदमी, तो अब ये इनवर्ड सप्लाई रिसीव करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई रिसीव करते हैं, उस केस में इनको सेल्फ इनवॉइसिंग में आरसीएम नहीं पे करना है 9(4) में, अनलेस कि ये सीमेंट या एज ए प्रमोटर कुछ और प्रोडक्ट्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रोक्योर नहीं करते 9(4) में, उसके अलावा नहीं। तो वहां पर आपको सेक्शन 31(3)(f) में सेल्फ इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। अब आप एक ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन से मटेरियल, आप ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज लेते हैं जिसमें आरसीएम लगना है, जैसे कि जीटीए है, जैसे कि एडवोकेट है, वहां सेल्फ इनवॉइसिंग की जरूरत है, आप सेल्फ इनवॉइसिंग कर दीजिए। लेकिन क्या उस सेल्फ इनवॉइसिंग को आपको ई इनवॉइस में भी कन्वर्ट करना है? माय रिप्लाई वुड बी नो। भाई साहब, वो इनवर्ड सप्लाई का इनवॉइस है, दिस इनवॉइस यू हैव रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ योर सप्लायर, दिस इज नॉट योर इनवॉइस, दिस इज नॉट योर आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज योर इनवर्ड सप्लाई। सप्लाई को सेक्शन 7 की कॉनोटेशन से जब भी हम समझते हैं उसे सिर्फ हम आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। सप्लाई का मतलब आउटवर्ड सप्लाई, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड इनवर्ड सप्लाई। परचेजेस जो मेरी होती हैं वो इनवर्ड सप्लाई होती है, इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा सर। Sir, availed ITC but not utilized and now reversing any interest applicable? If yes, what is the rate of interest? झा साहब, कोई 24% ब्याज नहीं लगेगी। लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा, छोड़िए सवाल, कोई बात नहीं, झा साहब को सवाल का जवाब मिल जाएगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा। कमर्शियल इंजीनियरिंग का जजमेंट पटना हाईकोर्ट का है, अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, नो इंटरेस्ट लिमिट। और दूसरी बात, 18 और 24 के ब्याज में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कभी भी, इस बात पर तो ब्याज लगेगा ही नहीं, ब्याज सिर्फ लगेगा 18, 24 नहीं लगेगा अभी, जब तक कि सेक्शन 42, 41, 42, 43 ऑपरेशनल नहीं होते, जीएसटीआर 2-3 फाइल नहीं कराते। नेहा मैम, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आई गेस नेक्स्ट शो में हम ये क्वेश्चन ले सकते हैं, राइट सर? आइडिया सर्विसेज। क्या बात है भारती मैम, आप तो छा गए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया जी आपने। सर एक्चुअली टाइम अभी बहुत कम है हमारे पास, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे मैडम, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे मैडम हम। जी सर, नेक्स्ट शो में मैम पक्का हम लोग रिवर्ट करेंगे, क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में हमें दीजिएगा। सर, वी आर फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स टुडे 18th, we apply for cancellation, we file up to date returns March 21, what is liability to file April, May, June quarter return whether after cancellation? सर, आपको मेरे हिसाब से इस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी टिल 18th May 21। सो माय सजेशन इज, बत्रा साहब, यू वेट टिल 30th June, file quarterly return and simultaneously file on 1st July your cancellation also. मैडम, आप उनका क्वेश्चन लीजिए जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं।
Sir, I guess Neelam Kumar. नीलम First कुमार time I जी. am. Sir, is reversal procedure is mandatory in case of discount received? No, sir. Unless your credit note depicts the output tax on that, then only you are duty bound to reverse your ITC, else not. I guess Neha ma'am is also new one to us. Can we take बस inputs for vehicles used for carrying equipment in the business? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप कोई भी व्हीकल खरीदती हैं तो उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है मेरे हिसाब से, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं. So should I take more questions or can we continue in next show? ये अरुण सिंह जी का सवाल ले लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मैडम, आपके लिए भी रेलेवेंट है. ब्यूटी ट्रीटमेंट आईटीसी अवेलेबल और नॉट? Beauty treatment. जी सर. No sir, no ITC available. Section 17 subsection 5 clause B blocked. So now is the time. All good things come to an end. So as this program also. So I would like to thank each one of you. We really enjoyed, and I hope you also enjoyed attending this program. Bharti ma'am, please. थैंक यू वेरी मच. और जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं उनको वेरी सॉरी. प्लीज आप नेक्स्ट शो में 3 PM पे नेक्स्ट ट्यूजडे प्लीज हमें दे दीजिएगा. वी विल रिवार्ड यू. थैंक यू सर. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you. Pranam.